Third is like understand. When you understand things, okay? That is also an emotion. You understand other person's pain. You understand other person's situation. So that is an emotion, okay? Worry, worry. WORRY, worry. So worry is also an emotion. Okay, worry is also an emotion. When you worry about something, you worry about your homework, you worry about your exams, or sometimes you worry about your somebody's health in the family. You worry about your dog. You worry about so many things. Okay, then hope, 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 hope. So hope is also an emotion. Like you're hopeful. But when it becomes hopeful, obviously it doesn't remain a verb. It becomes something else. Then wish. You wish about something. I wish I could do this. I wish I could do that. Okay. So wishing is also a emotion. बहुत बड़ी emotion I wish. I wish I do very well in my sports today. I wish I do this. I wish. Okay. And so wishing is also a very, very big emotion. Why have you put your head down? These two boys in Ramanuja center, this thing, first bench. Center row, Ramanuja. Why have you put your head down? Second bench. The boy in white t-shirt and the boy in red t-shirt. Why are you not writing or paying attention? Okay, next is express. When you express something, EXPRESS, express, your expression. Okay, when you express. Upset. Next is upset. You're upset about something. You're upset about something. Next is terrified. Terrified. Okay, you will just write terrify. TERRIFY. Terrify matlab, you know the meaning of terrify? I am terrified. Don't terrify me. मतलब बहुत ज़्यादा डराओ मत मुझे. Like too much fear is terrifying. Okay, so the whole scene was terrifying. I'm terrified. And here we are using terrify. That's the root word. Okay, so these are your emotions. Okay, prefer. 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 When you prefer something over something, like you have a choice, or even when you have no choice, sometimes you say, no, I don't want this because I prefer something. You go to a restaurant and there is a choice. You want to eat Indian cuisine, you want to eat Italian cuisine, you want to eat Chinese. So you will say, I always prefer Chinese over Italian, or I prefer Chinese over Indian, or I prefer Indian over Chinese. Like, so what is your preference? So that is another one. Okay. Show. When you show something, your gratitude or something. So show is also a emotion. Now we write action words. Which are the action verbs? Normal everyday activities which we do. Jump. Okay. So everybody write jump. Clean. Write, WRITE, fold, drive, you're driving. Throw, you're throwing a ball, you're throwing something in the dustbin, waste in the dustbin. You nod, you're nodding your head, nodding. Like this is called nodding, okay? So you nod your head, NOD, drag. Okay, when you drag something, dance, sing, explore. EXPLORE, like, exploring something. You are looking for something. And please keep these words with you and start using them. Okay, because that is how you will start. And when you talk amongst yourself,
use these words. Okay, please use. You can use 2 words in a sentence or 3 words in a sentence. Just try to make them. That is the way you'll be able to speak fluently, because that's our goal. That's the object we want to achieve. Okay, thoughts. Now come to thought section. Thoughts, first thing is think. When you think, okay, so that's an action happening. Now this action is happening in your head, in your brain. So nobody can see it, but you know it's happening inside. So think is a verb. Okay, first you think. See how we are going so that you remember. First you think, then you reason. Then you reason. Reason is also a verb. Okay, it's a thought verb. You reason. You think in your head and you say, okay, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए. Like, so many thoughts go in your head. That is reasoning. So you reason. After you reason, you understand. You understand things. Okay? Okay. So this is the reason. This is why this happened. So third is understand. Okay? Understanding follows by realize. You realize certain things. Okay. तो ये ऐसे भी हो सकता है. Realize. REALIZE. Okay? Realize. And once you do all this process has happened in your brain, then you remember. Then you remember that thing. It becomes your knowledge. So you remember. Okay? You can write another word. When you remember, now you know. Know is another thing. Write down know. Plan. Planning also happens in your brain. So plan. All these are thought verbs. Okay? Very easy to think. Hamesha sochna, can I do this with physically or can I do this in my brain? If it is in your brain, it is your thought word. Okay? If you feel, it is your emotion. So this is how you can categorize it. Okay? Plan. Imagine. Very, very important. Imagination is extremely important for all of us. Imagine. And last one is recall. When you remember, now see, when you go to an examination room, what do? You recall. जो भी आपने पढ़ा है उसको वो आप उसको बैठ के याद, लिखने से पहले आप याद करते हो. That is recalling. Okay? So that last word you will write here is recall. So I hope you know these words. And today, unfortunately, we were not able to complete this worksheet because of that whatever issues we had. Hopefully, bring this worksheet next time. We will try to complete it because this is very interesting and I want you to do the poem and the paragraph and answer all these questions too. Okay? So thank you very much. Don't lose this, as I have asked you to save all your worksheets. Okay, so save this one. This is your first worksheet after school. And please try to write a paragraph. Try to write a paragraph. Okay, and you can use some words from the verbs we have written. Thank you, beta. Thank you very much. Have a good day. Have a good day. Dear students, am I audible to you, bete? If I am audible, please raise your right hand. Please raise your right hand if I am clearly audible. Very nice, very good. Sure, sit down, down, down. So, my dear students, all of you know I am your science lecturer and my name is Dheeraj Vashisht. Okay? And our chapter linked is light. Everybody please note down. Light. Shabash.
My dear students, today I have huge apparatus with me and we will learn the science with the help of activities. आज हमारा बहुत सारा एक्टिविटी से लिंक्ड बात होगी और later on in the following lectures we will study these things theoretically. सबसे पहले हम एक्टिविटीज करेंगे ताकि इन द बैक ऑफ योर माइंड एक इमेज बन जाए कि हम क्या स्टडी करेंगे. तो कौन कौन सी चीजों के साथ हम एक्टिविटीज करेंगे, शाबाश, कौन कौन से टॉपिक्स पे करेंगे. टुडे लेक्चर इज ऑन एक्टिविटीज. एक एक्टिविटीज हम करेंगे बेटे काफी सारी रिफ्लेक्शन बेस्ड. रिफ्लेक्शन, गॉट इट. और कौन सी पढ़ेंगे एक्टिविटीज? रिफ्रैक्शन बेस्ड. रिफ्रैक्शन बेस्ड. Sorry, your voice is not audible. और कौन सी पढ़ेंगे बेटे हम? डिस्पर्शन बेस्ड. और कौन सी पढ़ेंगे? Sorry, your voice is not audible. कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ व्हाइट लाइट. और कौन सी एक्टिविटीज पढ़ेंगे? प्रोपिगेशन. ये वीडियो Sorry. okay bete. So dear students, today the topic is light and we will do the activities. Primarily in this lecture we are focusing on the activities. Fine. And these are the subtopics upon which activities will be done today. आपको बहुत मजा आने वाला है क्लास में. थ्योरी इनकी हम कमिंग लेक्चर्स में करेंगे, राइट. तो मेरे पास क्या क्या है मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहता हूं. हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे. ये ह्यूमन टॉय है मेरे पास. ह्यूमन टॉय. दिस इज मेरे पास ये बेटे मिरर है बड़ा. इससे कुछ एक्टिविटीज करेंगे. एक तरह से टीचर अपने बच्चों को ऑपरेटर्स दिखा रहा है टेबल के ऊपर. आपको मैं इस टेबल पे फोकस करूंगा और सब कुछ दिखाऊंगा बाद में, राइट. कोई बच्चा बता सकता है मेरे हाथ में क्या है इस वक्त? शाबाश. एनीबॉडी बता सकता है क्या है? लेजर बीम. लेजर बीम है बेटे मेरे पास. फिर मेरे पास ये छोटा मिरर है, देखो मिरर है. फिर मेरे पास बेटे प्लेन मिरर थे ये वाले. ये मेरे पास देखो लेंस है, लेंस. ओके. और मेरे पास ये कर्व्ड मिरर्स हैं. कर्व्ड मिरर्स. बहुत सारी चीजें अपने बच्चों को दिखाने लगा हूं आज मैं. फिर मेरे पास ये देखो व्हाइट स्क्रीन के रूप में ये मैंने गत्ते बना रखे हैं. व्हाइट स्क्रीन. ओके. फिर मेरे पास ये भी है एक मल्टी कलर डिस्क. न्यूटन डिस्क बोलते हैं इसको. तो हम बहुत सारी चीजें आज करने लगे हैं. तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, राइट. यानी एक्टिविटीज रिलेटेड टू मिरर, Excuse me, sir, your voice is lenses. not audible. शाबाश. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एक्टिविटीज रिलेटेड टू मिरर. देखो बेटे प्लेन मिरर है हमारे पास. ध्यान से बताना. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए यहां पर ये एक प्लेन मिरर है. मैं अभी करके भी दिखाऊंगा आपको.
सपोज ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ऐसे जमीन पे ऊपर खड़ा हुआ है, स्टैंड के ऊपर ऐसे इस तरह से खड़ा हुआ है. व्हाट इज दिस? प्लेन मिरर. और बेटे इस प्लेन मिरर से एल डिस्टेंस के ऊपर ये एक लड़का खड़ा है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. ये हमारे पास लड़का एक खड़ा हुआ. गॉट इट? और इस लड़के के हैंड की ऊंचाई इसके पैरों से लेकर दिस इज योर एच हाइट. राइट? तो हमें इस ह्यूमन बॉडी ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा प्लेन मिरर में. कोई बच्चा बता सकता है अगर मैं इसका यहाँ पर इमेज बनाता हूँ? Excuse me, sir. यस. Sir, voice is not clear. वॉइस इज नॉट क्लियर. ओके Yes, बेटे. कौन से सेक्शन में क्लियर नहीं कौन? है बेटा? कौन? Ma'am, in Richardson section. मैम बाकी सभी क्लासेस में क्लियर है, सिर्फ एक बाकी सभी क्लासेस में क्लियर है. रेज योर हैंड्स. तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज लिसन. अब मैं थोड़ा वॉल्यूम लाउड कर दूंगा अपनी आवाज का और आपको अच्छे से सुनेगा बच्चे. ध्यान से सुनो. सो व्हाट यू हैव सीन ऑन द बोर्ड, an object is made, at the same time image is made. This person is serving as object and इसका जो मिरर में फोटो आया that is serving as image. और इस इमेज का जो हाइट है h डैश और इधर ऑब्जेक्ट का हाइट है h. जानते हो इसमें क्या रिलेशन होता है एनीबॉडी? जितना लंबा आदमी इधर खड़ा होएगा हाथ उठाकर उतना ही उधर खड़ा होगा. यानी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज. दूसरी बात, अगर ये इंसान एल दूरी पर खड़ा है और उसका इमेज एल डैश दूरी पर है तो लेट मी टेल यू इमेज उतना ही दूर बनेगा जितना ऑब्जेक्ट दूर बनेगा. यानी बोथ ऑफ देम मिरर से इक्वी डिस्टेंट होंगे, इक्वल दूरी पर. इक्वी डिस्टेंट इक्वल प्लस डिस्टेंस को मिलाकर ये वर्ड बनाना है इक्वी डिस्टेंट. दूसरी क्या बात बोली बेटे? उनकी साइज इक्वल होंगे, साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना. अगर ऑब्जेक्ट ने अपना लेफ्ट हैंड उठाया है, लेफ्ट हैंड रेज करा हुआ है, तो इमेज अपना राइट हैंड रेज करेगा. ऑब्जेक्ट ने कौन सा हैंड रेज करा है? लेफ्ट. इमेज ने कौन सा करा? राइट. यानी ऑब्जेक्ट में जो लेफ्ट साइड है वो राइट बन जाती है, राइट साइड लेफ्ट बन जाती है. और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लेफ्ट का राइट बनना और राइट का लेफ्ट बनना. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन. गॉट इट? अब हम इसको बोर्ड के ऊपर यहां पर अपनी एक्टिविटीज के टेबल के ऊपर करके देखते हैं. देखो बच्चे गौर से देखो, ये सभी आपको इस वक्त मिरर दिख रहा है. राइट? गौर से देखो, ये सारी क्लासेस बैठी हैं आपकी, सारी मिरर में आपको दिख रही. क्लियर मिरर? और मैंने इस मिरर को इस स्टैंड के ऊपर टिका दिया. ये लो टिका है. गॉट इट? अब गौर से देखना, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट के रूप में एक ह्यूमन बॉडी है
जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं मिरर के सामने रखूंगा तो आपको इसका इमेज दिखेगा। गौर से देखो, नॉट ओनली यू आर सीइंग द ऑब्जेक्ट बट आल्सो द मिरर। जिन बच्चों को ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज दोनों दिख रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों दिख रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। अब गौर से देखो, जितना इस ऑब्जेक्ट का साइज है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, उतना ही मिरर के अंदर बने हुआ ह्यूमन टॉय का साइज भी उतना ही है, राइट। और ये ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ जाता है तो इमेज भी मिरर की तरफ आ रहा है, राइट। मैं इसको आपके टेबल के ऊपर फोकस कर, टेबल के ऊपर और अच्छे से दिखाता हूं, बड़ा करके। तो देखो, मैं अभी अपना टेबल आपको और ज्यादा नजदीक करके दिखाऊंगा। सभी बच्चे इस टेबल पे देखें, गौर से देखो बेटे। ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने मिरर के आगे रखा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, गौर से देखो, ये बिल्कुल इमेज के बराबर खड़ा होता है। जितना ऑब्जेक्ट दिख रहा है उतने ही साइज का इमेज दिखता है। एक और चीज देखो, हम देखते हैं, हम इसमें इसका लेफ्ट हैंड उठाकर देखते हैं और देखते हैं इमेज में राइट उठता है कि नहीं। ये देखो, मैंने इसका लेफ्ट हैंड ऊंचा उठा दिया और राइट को नीचे ही रखा। अब देखते हैं जो इसका इमेज बनेगा, क्या उस इमेज का राइट हैंड उठता है या नहीं उठता। उल्टा उठना चाहिए, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। गौर से देखो, इसने अपने कौन सा इमेज उठा रखा है, हैंड ऊंचा उठा रखा है लेफ्ट, जबकि इमेज वाले ने कौन सा उठा रखा है, एक दूसरे से उल्टे हैं बेटे। इमेज ने कौन सा हैंड उठा रखा है और ऑब्जेक्ट ने कौन सा हैंड उठा रखा है, इनका लेफ्ट और राइट आपस में चेंज कर जाते हैं। इसकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, गॉट इट। अगर इस इंसान की हाइट, ये जो मैंने दिखाया वो हाइट, इसकी हाइट 5 मीटर है, तो इसके इमेज की हाइट भी 5 फुट है, तो इमेज की हाइट भी 5 फुट होगी। दोनों सेम हाइट के होंगे, सेम साइज के होंगे। अगर ये इंसान मिरर से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो उसका इमेज शीशे के अंदर वो भी मिरर से 5 मीटर पीछे खड़ा होगा, गॉट इट। तो ये हमने एक एक्टिविटी करके दिखाई आपको। अब हम वापस बोर्ड पर चलते हैं, शाबाश। ये देखो, ब्लैक बोर्ड पर वापस आओ। टीचर ने आपको सिखाया कि अगर ये वाली चीज 5 मीटर हो, इमेज का डिस्टेंस मिरर से, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से ये भी 5 मीटर ही होगा। और क्या बताया टीचर ने, अगर इस लड़के ने अपना हैंड 5.5 फुट की हाइट पर उठा रखा होगा, तो इसके इमेज ने भी अपना हैंड 5.5 फुट की हाइट पर उठाया होगा। और क्या करा, इस लड़के ने अपना लेफ्ट हैंड रेस करा है, जबकि इसके इमेज ने राइट हैंड रेस करा है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लेटरल, मैंने साइड चेंज करना। इन्वर्ट, इन्वर्जन वर्ड लिया गया इंग्लिश के वर्ड इन्वर्ट से, उलट करना। लेटरल मैंने साइड चेंज करना, इसीलिए लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखना। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। जिन बच्चों को ये एक्टिविटी समझ आ गई है, प्लीज रेज योर राइट हैंड। जिनको ये समझ आ गई है, जिनको समझ आ गई है राइट हैंड, जिनको नहीं समझ आई लेफ्ट हैंड। ओके, तो मोस्टली समझ आया। अब हम दूसरी एक्टिविटीज करते हैं बेटे। सभी बच्चे, सभी बच्चे मेरे टेबल पे, एक्टिविटी वाले टेबल पे दोबारा देखेंगे, शाबाश। सभी बच्चे दोबारा देखेंगे। गौर से देखो बेटे, मेरे पास क्या है।
मेरे पास एक ऐसी डिस्क है जिसको हम न्यूटन डिस्क बोलते हैं, और इसके पीछे मैंने सेल लगा रखे हैं, और ये मोटर लगा रखी है, डीसी मोटर। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो ये चलने लगती है, ऐसे घूमती है, ये चलाऊंगा तो घूमेगी, राइट। अब इसमें मैं अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना बेटे। ये सामने से लाइट आई, इसके रेड पोर्शन से टकराकर आपकी आंखों में गई, तो आपको रेड कलर दिख रहा है, येलो दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। तो इसमें मैंने 7 कलर्स का पैटर्न बना रखा है। कौन से 7 कलर? वही 7 कलर जो रेनबो में होते हैं। आप कहोगे सर इसमें तो रेड कलर आपने 2 बार दिखा रखा है, ब्लू कलर 2 बार है आपका, बाकी कलर भी 2 बार दिखा रखे हैं, ग्रीन भी 2 बार है। तो ये मैंने 7 कलर का 2 बार पैटर्न बना रखा है। देखो, रेड से लेकर एक पैटर्न, फिर रेड से शुरू करके दूसरा, वही पैटर्न। 2 पैटर्न बना रखे हैं बेटे मैंने अपने, राइट। तो यहां से मैं अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहता हूं? मैं ये सिखाना चाहता हूं कि 7 कलर्स जब इंसान की आंखों में जाते हैं तो उन वो व्हाइट बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। बच्चा मेरे से पूछेगा सर आपके पास क्या प्रूफ है कि ये व्हाइट ही दिखेगी? तो मैं कहूंगा बेटे मैं इसको ऑन करके दिखाता हूं आपको। 7 के 7 कलर जब आपकी आंखों में मिक्स होकर जाएंगे तो आपको व्हाइट शीट दिखाएगी। देखो मैं ऑन करने लगा हूं इसको, अभी ये खड़ा हुआ है, ये इसका ऑन ऑफ बटन है रेड वाला, ये मैंने इसको ऑन कर दिया और ये घूमने लगी। अब मैं आपकी तरफ मोड़ता हूं, देखो कौन से कलर की दिख रही है बेटे? व्हाइट कलर की। मैं इसको ऑफ कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ऑफ करते करते जैसे जैसे ये स्लो होएगी आपको 7 कलर फिर से वही दिखने लगेंगे। अब सोच के देखो, अगर किसी बच्चे ने अपने बाइक के ऊपर जो व्हील कवर होता है साइडों के ऊपर, उसमें ये 7 कलर लगा रखे हो, कितना मजा आएगा उसको, है। 7 कलर मैं इसको स्विच ऑन करने लगा हूं, सभी के 7 कलर्स मिलके फिर से व्हाइट कलर बन जाएगा। इसलिए व्हाइट कलर को अगर हम स्प्लिट अप करें तो 7 कलर्स में टूटता है। उसकी इस टूटने की प्रोसेस को डिस्पर्शन बोलते हैं। व्हाइट कलर कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। मैं इसको ऑन करके दिखाता हूं, दोबारा देखना, दिख रहा है बेटे? फिर से व्हाइट बन गया। ऑफ करें फिर से, अभी ये देखो 7 कलर्स आ गए। एक बार फिर से देखो, और ये ऑफ करा मैंने। जैसे ही ऑफ करूंगा ये धीरे धीरे रेस्ट पर आएगी, और रेस्ट पर आते ही आपको 7 कलर दोबारा दिखने लगेंगे। यहां से साफ पता लगता है कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। अब इससे रिलेटेड हम बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखो ध्यान से, शाबाश बच्चे। टीचर क्या बोलना चाहता है कि जो व्हाइट लाइट है, अगर यहां से हम व्हाइट लाइट फेंकेंगे बेटे, तो और हमारे पास कोई ऐसा प्रोसीजर हो कि इस व्हाइट लाइट को हमने स्प्लिट अप करना है बेटे, तो याद रखना, एक इसमें से रेड कलर, एक इसमें से रेड कलर निकलेगा, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहां से स्पेलिंग VIBGYOR, ये 7 कलर्स निकलेंगे। सभी बच्चों ने इन 7 कलर्स के नाम याद रखने हैं। 7 कलर, V से स्टैंड्स वायलेट कलर, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। सभी बच्चे नीचे से स्पेलिंग याद करेंगे, नीचे से ऊपर को क्या स्पेलिंग याद करेंगे? विबग्योर। यही 7 कलर्स मैंने इस डिस्क के ऊपर बनाए हुए थे जो आपको दिखाई थी, 7 कलर्स। ओके, सेम 7 कलर्स।
तो यहां से पता लगता है व्हाइट लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर्स। और ये जो हमने प्रोसेस पढ़ी कि व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूट जाना, इसको डिस्पर्शन बोलते हैं। डिस्पर्शन। डिस्पर्शन वर्ड इंग्लिश के वर्ड डिस्पर्स से लिया गया। डिस्पर्स यानी कि बिखेरना 7 कलर्स में। ओके, जिन बच्चों को ये एक्टिविटी समझ आई प्लीज रेज योर राइट हैंड। शाबाश। जिन बच्चों को न्यूटन डिस्क वाली समझ आई प्लीज रेज योर राइट हैंड। ओके, अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे। मेरे टेबल पे वापस आओ। मेरे टेबल पे वापस आओ बच्चे। शाबाश। हम एक और एक्टिविटी करके दिखाएंगे आपको। कौन सी? लुक हियर, मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है बेटे, ग्लास ऑफ वाटर, राइट। तो आप बोलोगे सर इसमें आप क्या दिखाना चाहते हो? तो मैं अपने बच्चों को बताऊंगा। नीचे देखो बेटे, ग्लास दिख रहा है इस वक्त आपको रखा हुआ, और इसका मतलब है वाटर इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम। और इसके ऊपर एयर है, वो भी ऑप्टिकल मीडियम है। हम एक प्रोसेस पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। गौर से देखो, मेरे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट पेंसिल है, कहीं से भी टूटी हुई नहीं है। जैसे ही मैं इस कंटेनर में डालूंगा, आप यहां से देखना, आपको ये टूटी हुई दिखाई देगी, स्ट्रेट नहीं दिखेगी। गौर से देखना। अभी देखो ये बिल्कुल, अगर आपको अच्छे से नहीं दिखता तो मैं नीचे पीछे व्हाइट स्क्रीन करता हूं तो आपको अच्छे से दिखेगी। देखो अब ये अच्छे से दिख रही है आपको। मैं इसको ग्लास में डालूंगा तो ये स्ट्रेट पेंसिल आपको टूटी हुई दिखाई देगी, एक जगह पर मुड़ी हुई दिखाई देगी। जितने बच्चों को मुड़ी हुई दिखाई दे रही है प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश। जिनको ऐसे लगता है सेंटर से में टूटी हुई है, बहुत अच्छे। देखो फिर से देखो, बाहर निकालूंगा तो बिल्कुल स्ट्रेट, अंदर डालूंगा तो टूटी हुई दिखती है। और ये क्यों टूटी हुई दिखती हैं? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। मैं फिर से एक बार आपको नजदीक करके दिखाता हूं। ये देखो, ये गिलास है, ये मेरी पेंसिल है, और इस वक्त आपको ये बिल्कुल, इस वक्त आपको ये बिल्कुल साबुत दिख रही है पेंसिल। मैं गिलास में डालूंगा तो आपको टूटी हुई दिखेगी। और ज्यादा अच्छी तरह देखना है तो यहीं पर ज्यादा क्लियर दिख रहा है बस, राइट। तो सभी बच्चे देखेंगे, इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात करेंगे बोर्ड के ऊपर। अब बोर्ड पे वापस आओ सारे बच्चे। शाबाश। बोर्ड के ऊपर टीचर ने अभी पेंसिल वाली एक्टिविटीज दिखाई, वो किससे लिंक्ड थी? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। उसमें हमेशा याद रखना है कि अगर एक ऑप्टिकल मीडियम है जैसे कि एयर, दूसरा ऑप्टिकल मीडियम है कांच भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। इसमें से जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो वो सीधी नहीं जा पाती, उसको थोड़ा बहुत मुड़ना पड़ता है। इसी की वजह से आपको पेंसिल ब्रोकन दिखती है, पेंसिल एक जगह से मुड़ी हुई दिखती है। तो इस प्रोसेस का नाम है रिफ्रैक्शन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम एक और एक्टिविटी करके दिखाएंगे आपको। शाबाश। सभी बच्चे देखो बोर्ड पे। मैं अपने बच्चों को एक ये लेजर बीम दिखा रहा हूं। देखो देखो, आपको ये लेजर बीम में लाइट दिख रही होगी इस वक्त, और देखो इस वक्त इसमें रेड लाइट दिख रही होगी, बहुत डिम।
चलो कोई बात नहीं, दूसरी तरफ से दिखाते हैं हम। देखो बेटे, मेरे पास ये मैंने मिरर रखा, सभी बच्चे ध्यान से देखो मिरर, और इसके सामने मैंने ये व्हाइट कलर का स्क्रीन रख दिया, स्क्रीन। तो मेरे बच्चों को स्क्रीन भी दिख रहा है और मिरर भी दिख रहा है। और गौर से देखो मेरे हाथ में क्या है, टॉर्च। बोला नहीं, आजकल जल रही है, खाली कर दे जल रही है। देखो बेटे, टॉर्च कितना बिल्कुल ब्राइट टॉर्च है। अगर मैं इस टॉर्च को अभी बंद कर दिया, मैं इसको मिरर की तरफ डालूंगा, तो मिरर से लाइट टकरा के व्हाइट स्क्रीन पे आएगी यहाँ पर। इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सभी देखो ध्यान से, स्क्रीन भी दिख रहा है, व्हाइट मिरर भी दिख रहा है, और मैं इस टॉर्च को ऑन भी कर दिया, और मैं इस वक्त मिरर की तरफ घुमाने लगा हूं इसको। दिख रहा है बेटे, मैं मिरर की तरफ घुमाया और व्हाइट स्क्रीन के ऊपर आ रही है ये लाइट। देख रहे हो आप? यस या नो? इसको और ज्यादा शार्प करके देखते हैं हम, और भी ज्यादा अच्छे से दिखेगी आपको। चलो कोई बात नहीं बेटे, ये थोड़ी सी टाइट है। और देखो एक बार फिर से, मैं इसको, इस लाइट को मिरर पे फेंकूंगा और ये रिफ्लेक्ट होकर आपको इस स्क्रीन पे दिखेगी, ब्राउन कलर वाले गत्ते पे। गौर से देखना, दिख रही है आपको बेटे? ये अभी दिखेगी, रुक जाओ रुक। दिख रही है गत्ते के ऊपर? दिख रही है बेटे? देखो मैं मिरर, मैं गत्ते की तरफ नहीं फेंक रहा, लेकिन ये गत्ते की तरफ आ रही है। मैंने तो इसको मिरर की तरफ फेंका। आपने नोटिस करा? फिर से देखो, और अच्छे से दिखाता हूं। देखो, मैं इसको मिरर की तरफ फेंक रहा हूं टॉर्च को, लेकिन आपको रिफ्लेक्शन गत्ते की तरफ दिख रही है। दिख रही है बेटे या नहीं? जिन बच्चों को गत्ते के ऊपर लाइट दिख रही है, प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज रेज योर हैंड जिनको गत्ते के ऊपर लाइट दिख रही है टॉर्च की। हैं? शाबाश। ये जो चीज हमने पढ़ी है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बेटे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मैं एक और एक्टिविटी अपने बच्चों को करके दिखाऊंगा। उसके लिए आपको बोर्ड पे देखना होगा एक बार। शाबाश, बोर्ड पे देखो एक बार फिर से बेटे। बोर्ड पे टीचर ने अभी अभी क्या दिखाया? टीचर ने दिखाया कि अगर एक ये मिरर है, मिरर, और उसके ऊपर कोई इंसान टॉर्च से ऐसे लाइट फेंकता है, तो वो मिरर से टकरा के इधर स्क्रीन के ऊपर पड़ेगी। इसी स्क्रीन को हमने गत्ते के रूप में रखा हुआ था। तो आपने देखा था, मैंने टॉर्च लाइट मिरर की तरफ फेंकी, वहां से टकराकर ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा था, गत्ते के ऊपर लाइट। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, गॉट इट? ये मैंने अभी अभी आपको समझाया। एक चीज और सिखाता हूं अपने बच्चों को, ध्यान से सुना। मेरे पास एक चीज होती है जिसको बोलते हैं लेंस। लेंस, लेंस क्या होता है बेटे? ये एक कांच का सर्कुलर पीस होता है, सर्कुलर पीस। ये कांच का जो सर्कुलर पीस होता है, ये सेंटर से यहां से मोटा होता है। ये इसकी थिकनेस ज्यादा होती है, साइडों से कम होती है। किनारे से इसकी थिकनेस ऐसे हाथ में पकड़ूंगा तो कम होएगी, सेंटर से मोटा होएगा। अगर सेंटर से थिक है, तो इस कांच के सर्कुलर पीस को हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस। एक और भी कांच का पीस होता है सर्कुलर, जो सेंटर से थिन होता है। सेंटर से थिन होता है,
पर साइडों से यहाँ पर डॉटेड वाली लाइन से मोटा होता है। ऐसे कांच के सर्कुलर पीस को हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे मैं पकड़ के साइड से देखूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास ये पड़ा भी है, ये देखो, ये कन्वेक्स लेंस है। अगर इसको मैं फ्रंट से देखूं, सर्कल दिखता है, फ्रंट से देखने से ये सर्कल दिखता है बिल्कुल, और साइड से देखने से बिल्कुल ऐसे एज दिखेगा इसका। अगर मैं इसको साइड से देखूं, ये वाला कन्वेक्स लेंस, तो ऐसे दिखेगा बेटे, सेंटर से मोटा, साइडों से पतला। और कॉनकेव लेंस देखूंगा तो ये साइड से ऐसे दिखेगा, सेंटर से मोटा, साइडों से पतला। अब टीचर अपने बच्चों को क्या बताना चाहता है? टीचर ये बताना चाहता है कि जब हम इसके ऊपर लाइट फेंकेंगे, लाइट ऐसे मैंने टॉर्च से लाइट फेंकी, तो कन्वेक्स लाइट्स इस लाइट को फोकस करके सिंगल पॉइंट के ऊपर फोकस कर देगा। यहां बहुत ही ब्राइट लाइट आ जाएगी। ये लाइट कहां से आ रही है? टॉर्च से आ रही है, पैरेलल बीम, और यहां फोकस हो जाएगी कॉन्वेक्स लेंस में। और अगर कॉनकेव लेंस में फेंकेंगे यही पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो वो फोकस होने की बजाय फैल जाएगी, फैल दूर दूर चली जाएगी। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। गॉट इट? अब टीचर इसको क्लास में करके दिखाएंगे अपने बच्चों को। शाबाश, सभी बच्चे एक बार फिर से एक्टिविटीज वाले टेबल पे आ जाएं। सभी से कैमरा नीचे लाओ भाई, शाबाश। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। मैंने ये लेंस लिया हुआ है, इसको मैं कागज से साफ कर रहा हूं। ये बिल्कुल क्लीन हो गया है, साफ। और ये मेरी स्क्रीन हो गई है बेटे, गौर से देखो। सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाएं और कोई भी क्लास में घूमे मत। ओके, रामानुजम क्लास में सभी बच्चे बैठ जाएं। पाइथागोरस में भी बच्चे इधर उधर घूमी जा रहे हैं, शाबाश। अब मेरे पास एक टॉर्च है, अगर मैं इस टॉर्च से डायरेक्ट लाइट फेंकूं तो देखो कितनी बड़ी जगह पे ऊपर फैली हुई है। लेकिन जैसे ही मैं इसके रास्ते में लेंस कर दूंगा, लेंस, तो ये लेंस के थ्रू मैं अगर लाइट फेंकूंगा तो वो एक पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाएगी। अब देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ। अगर डायरेक्ट लाइट फेंकी तो देखो कितनी जगह पर आ रही है। ठीक है, इसको मैं लाइट को कन्वर्ज करूंगा, लेंस लेकर आऊंगा। तो मैं ये लेंस लेकर आया, अब लेंस लेकर आया, अब मैं इस लाइट को फेंकूंगा। देखो देखो कितनी शार्प होगी ये स्क्रीन के ऊपर। हैव यू नोटिस कितना ब्राइट स्पॉट बन गया है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि वो लाइट फोकस हो चुकी है। अगर मैं लेंस को हटाऊंगा तो ये फैल जाएगी। देखो बड़ा स्पॉट बन गया, लेंस को हिलाते ही, लेंस को हिलाते ही बड़ा स्पॉट बन गया, लेंस को रखते ही कितना छोटा स्पॉट बन गया। देखो दिख रहा है कितना छोटा स्पॉट बन गया बेटे? हैव यू नोटिस कितना ब्राइट स्पॉट बना हुआ है स्क्रीन के ऊपर? हाँ या ना? आपको ये दिखना चाहिए। लाइट, अभी मैंने अपने असिस्टेंट को टॉर्च पकड़ा दी, वो इसके ऊपर सेंटर सेंटर में लाइट फेंक रहा है। ये देखो मैं इसके रास्ते में लेंस लेकर आऊंगा, लेंस लाने से ये लाइट कितनी फोकस होगी है, गौर से देखो। जस्ट सी, कन्वर्ज कर दिया उसने लाइट को। हटाऊंगा तो फैल जाएगी, देखो हटाऊंगा तो कितनी बड़ी जगह पर फैल गई, फोकस करूंगा तो कितनी छोटी जगह पर आ जाएगी। ये देखो, फिलहाल ये, फिर से बताऊं, मैं पेंसिल, इतनी जगह पर गोला आ रहा है लाइट का, इतनी जगह। व्हाट इट? अब मैं लेंस लगाऊंगा तो ये वाला सर्कल का एरिया बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि लाइट फोकस हो जाएगी। व्हाट इट? तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस।
अब मेरे पास एक लेंस और भी है। ये देखो सारे बच्चे टीचर एक दूसरे लेंस निकाल रहे हैं। इसकी किनारी देखो कितनी मोटी है, ये सेंटर से पतला है। इसको कनकेव लेंस बोलते हैं। पहले जो दिखाया था ये वाला जो मेरे हाथ में हिल रहा है इस वक्त, ये कन्वेक्स लेंस है। इसकी किनारी पतली है, सेंटर से मोटा है। और कॉनकेव लेंस में उल्टा है, इसकी किनारी मोटी है, एजिस मोटे हैं और सेंटर से पतला है। अब अगर मैं कनकेव लेंस को लाइट के रास्ते में रखूंगा तो ये लाइट को फैला देगा। देखो गौर से, पहले ये लाइट आ रही है टॉर्च इसके गत्ते के ऊपर, इसने इतना एरिया घेरा हुआ है। जैसे ही मैं ये लेंस रखूंगा ये वाला घेरा बड़ा हो जाएगा साइज में पहले के मुकाबले। गौर से देखो कितना बड़ा हो गया बेटे। इसको हटाऊंगा तो छोटा हो जाएगा गौर से। यस, इसको रखूंगा तो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है इसने लाइट को फैला दिया। हैव यू नोटिस? लाइट को इसने फैला दिया। फैलाने से उतनी लाइट इसलिए थोड़ी डिम भी दिखने लगती है। इसको हटाऊंगा तो गोला छोटा हो गया। देखो ये चीज हमने क्या स्टडी करी, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस, इसकी थ्योरी अभी अभी मैंने अपने बच्चों को समझाई थी। ओके, अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी को करने से पहले मैं अपने बच्चों को दो तरह के मिरर दिखाना चाहता हूं। इन दोनों मिरर्स को, पहले जो मैंने दिखाए थे वो थे लेंसेज। अभी जो मैं दिखाने लगा हूं उसको बोलते हैं कनकेव एंड कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स। ये मिरर है, गौर से देखो। टीचर ने अपने हाथ में दिखाया हुआ है। अच्छे से दिखे तो मैं पीछे व्हाइट स्क्रीन के फ्रंट पे करता हूँ। बैक साइड से इसको ब्लू कलर का पॉलिश कर रखा है और फ्रंट पे ये मिरर दिख रहा है। ये बिल्कुल फ्लैट मिरर नहीं है, सेंटर वाले पोर्शन से अंदर को झुका हुआ है। इसको कनकेव मिरर बोलते हैं। एक मेरे पास दूसरा मिरर है, वो ये देखो, पीछे से पॉलिश करा है ब्लू कलर का और सेंटर से आगे वो उभार आया हुआ है। सेंटर से उभार आने वाले मिरर को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। जो दूसरे वाला मिरर है जो सेंटर से अंदर को झुका हुआ है उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड मैं अपने बच्चों को एक्टिविटी दिखाऊंगा, लेकिन पहले बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा फिगर देखो। शाबाश, सभी बच्चे बोर्ड के ऊपर वापस आएंगे। सभी बच्चे बोर्ड के ऊपर वापस आएंगे। ये वाले फिगर को हम छुपा देते हैं। नया फिगर गौर से देखो। अगर मैं इस तरह का मिरर लूं जिसकी साइड पे पॉलिश कर रखी है और ये फ्रंट से देखने से तो बिल्कुल गोल दिखेगा और साइड वाइज व्यू से मेरे को ऐसे कर्व दिखेगा, इस मिरर को हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। और अगर ऐसे होता बाहर को उभरा हुआ और मैंने इधर सिल्वर पॉलिश करा है या निकल पॉलिश करा हुआ है जिसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा था, इसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर। और इन दोनों को इकट्ठे क्या बोलते हैं? ये दोनों इकट्ठे बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। दोनों को स्फेरिकल मिरर की ये दोनों टाइप्स होगी। अब देखो ये करेंगे क्या बेटे, ध्यान से देखना। अगर मैं इसके कनकेव मिरर के ऊपर लाइट थ्रो करूंगा टॉर्च से, तो ये लाइट मिरर से टकरा के एक पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाएगी। फोकस, कौन सा वर्ड टीचर ने बोला? एफ पॉइंट पर फोकस हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी और इसको फोकल पॉइंट बोलते हैं। फोकस, फोकस भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो कनकेव मिरर कन्वर्जिंग करता है, कन्वर्जिंग। एक, और अगर मैंने यही लाइट इसके ऊपर फेंकी होती, इसके ऊपर बेटे, देखो इसके ऊपर मैं फेंकूंगा तो ये वाला मिरर क्या करेगा, इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को
जो कि टॉर्च से आ रही है, इधर से टॉर्च उसको भेजेगी टॉर्च से, तो ये उसको फैला देगा, इधर को फैला देगा। तो इस प्रोसेस को, बिखेरने की प्रोसेस को बोलते हैं डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग, ओके। तो दोनों की मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं एक्टिविटी टेबल के ऊपर। सभी बच्चे एक बार फिर से एक्टिविटी देखें मेरी। शाबाश, शाबाश, सभी बच्चे देखेंगे। मैंने 2 स्क्रीन्स ले ली हैं और ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, दिख रहा है कॉनकेव मिरर, और इसके ऊपर मैं टॉर्च लो, इस टॉर्च को ऑन करूंगा। जब मैं टॉर्च को ऑन करा तो ये डायरेक्ट इस पे ऊपर पड़ रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसके सामने ये मिरर रखा और उसके बाद सामने दूसरी स्क्रीन रखी, तो देखो इसने दूसरे दूसरे गत्ते के ऊपर कितना कॉम्पैक्ट करके दिखाया लाइट को। दिख रहा है, बड़े वाले सर्कल को छोटा सा सर्कल बना दिया। नोटिस कर रहे हो, बड़ा वाला सर्कल इसके ऊपर और कनकेव लेंस उसको छोटा फोकस कर देता है। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। अगर मैंने दूसरा मिरर यूज कर लिया, कौन से वाला, कनकेव मिरर, तो ये इस लाइट को और भी बड़ा करेगा। यहाँ पे तो और भी बड़ा करके दिखाएगा। देखो, ये देखो कितना बड़ा कर दिया उसने। फिर से देखो, ये मैंने ये छोटा है इसके ऊपर रखा तो व्हाइट स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट करके मारेगा दूसरे वाली पे और इसको बड़ा कर देगा, पहले के मुकाबले बड़ा कर दिया, क्योंकि उसने लाइट को फैला दिया। इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ लाइट बाय द कन्वेक्स मिरर। तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने एक्टिविटीज दिखी। सिर्फ पाइथागोरस क्लास आज अच्छे से नहीं पढ़ी, बाकी तीनों सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़े। गॉट इट बेटे? बाकी की चीजें हम अगले लेक्चर में लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।